Hello students, today we will start our new unit current electricity. Student इससे पहले हमने यूनिट पढ़ी electrostatic. Electro means charge, static at rest, that is the study of charges at rest. But आज हम पढ़ने वाले हैं current electricity. यहाँ भी two words हैं. Current means motion and electricity means charge. That is, now we are studying the charges which are in moving condition, that is current electricity. And in current electricity, first of all we will discuss first topic, electric current. What is electric current? Electric means charge, current means motion in moving condition. Now what is electric current? Actually students, जैसे हम किसी कंडक्टर को टच करते हैं, जैसे कंडक्टर विंडो में कंडक्टर, किसी चेयर में कंडक्टर, जब उसे टच करते हैं हमें कोई भी शॉक फील नहीं होता. व्हाई? बिकॉज इन दैट कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली. वो रैंडमली मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं. अगर उनकी मैं टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करूं, इट विल बी जीरो. दिस विल बी जीरो. इनकी नेट वेलोसिटी होगी जीरो, तो हमें कोई शॉक फील नहीं होता. बट अगर यही कंडक्टर इसे मैं किसी बैटरी के साथ अटैच कर देता हूं या किसी मेन सप्लाई के साथ अटैच कर देता हूं, तो क्या होगा? अगर मैं इस कंडक्टर को, इसके फर्स्ट एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैं कनेक्ट कर रहा हूं और दूसरे एंड को मैं नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे नेगेटिव का चार्ज है, ये पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. जब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस समय में इनके फ्लो को, टाइम के साथ इनके फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा. तो अब हमें शॉक फील होगा. So you can say what is electric current? So electric current is the rate of flow of charge in a particular direction in a wire. It is the rate of flow of charge. You can say electrons, charge, electrons in a पर्टिकुलर डायरेक्शन. स्टूडेंट्स ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, फ्लो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ वायर, और यू कैन से इन अ कंडक्टर और कंडक्टर. दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट. इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर डायरेक्शन को आपको फोकस करना है. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर सम चार्ज व्हिच इज फ्लोइंग फॉर सम टाइम. लेट dq is the amount of charge flowing in a wire. Amount of charge flowing in a wire, or you can say a conductor flowing in a wire for time dt. For time dt. It is flowing for time dt. Then electric current. What will be electric current? Electric current will be rate of flow of that charge. Then electric current I equal to dq by dt. This will be dq by dt. This is the electric current. I is equal dq by dt, or you can say simply q by t, charge upon time. That is called the electric current. Hence electric current, it is the rate of flow of charge or electron in a particular direction in a wire or conductor. Now some superb key point. Super key points are the important concepts from CBSE point of view, as you know. Now, first of all, we will discuss about the direction of the current. And the direction of the current, what will be the direction? Let's suppose there is a conductor.
This is a conductor. And the electrons are moving in a particular direction. This is the direction of flow of electrons. This is the direction of flow of electrons. Then the direction of current will be opposite to the direction of flow of the electrons. Hence you can say the direction of current is opposite to the flow of direction of the electrons. Again, let us consider a conductor, and the positive charges are moving in a particular direction. This is the flow of positive charges, direction of flow of positive charges, and the current will be in the same direction as the flow of direction of flow of positive charges. Hence you can say electrons are moving in the opposite direction to the current, and the positive charges are in the same direction of the current. This is the direction of the electric current. Hence you can say the conventional direction of electric current, the conventional direction of electric current is opposite to the direction of flow of electrons. पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं. Opposite to the direction of flow of electrons, or you can say opposite to the direction of flow of electrons, or you can say along the direction of flow of positive charges, or along the direction of flow of positive charges, positive charge. Okay students, this is the conventional direction of the electric current. This is the concept, is important concept. And second one, students, +1 में हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच हैविंग पर्टिकुलर डायरेक्शन. करंट के पास भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इस हिसाब से ये होना चाहिए वेक्टर. बट सपोज करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस इज अ कंडक्टर और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है. लेट्स सपोज इट इज ऑफ 3 एम्पियर. ये 3 एम्पियर का करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, और इस कंडक्टर के साथ मैं एक और कंडक्टर अटैच कर देता हूँ. मैंने इसको कनेक्ट किया एक और कंडक्टर को इसके साथ, और इसमें से भी कुछ करंट फ्लो कर रहा है. लेट्स सपोज इट इज 7 एम्पियर. आपने 2 वायर्स को अटैच किया, एक में 3 एम्पियर करंट है, एक में 7 एम्पियर का करंट है. इन दोनों वायर को एक थर्ड वायर के साथ अटैच कर दिया एक पॉइंट से. नाउ what will be the total current in this wire? The current will be the algebraic sum of 3 ampere and 7 ampere, that is 10 ampere. हमने क्या किया? algebraic sum कर दिया. अगर इसकी डायरेक्शन होती तो ये वेक्टर होता, तब ये 10 एम्पियर करंट नहीं आता. एज पर द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ये 10 एम्पियर नहीं होता. तो इसने वेक्टर के एडिशन के लॉ को ओबे नहीं किया. तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक स्केलर है. व्हाई? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज laws of vector addition cannot be applied on electric current, cannot be applied on electric current. एक्चुअली इसने वेक्टर एडिशन के लॉ को ओबे नहीं किया. दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर quantity. Okay students,
So SK points are very important concepts from CBSE as well as competitive point of view. So स्टूडेंट जितने भी हम सुपर्ब की पॉइंट पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बोर्ड में क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स जरूर मिलेंगे. तो these are very important. Conventional direction of electric current is opposite to the direction of flow of electrons. Opposite to the direction of flow of electrons आप याद रखना. Okay students, and electric current is a scalar quantity. This is the concept of electric current. Now बात करते हैं इसके यूनिट्स की. As you know, electric current is the rate of flow of charges. You can say, अगर मैं बात करूँ करंट, ये है dq/dt, चार्ज अपॉन टाइम. अगर मैं चार्ज को 1 कूलम कंसीडर करूँ और टाइम को 1 सेकेंड. If dq is 1 coulomb and dt is 1 second, then what will be our formula? Then I will be dq/dt, that is 1 coulomb by 1 second. We can write it as 1 coulomb upon 1 second. Then answer should be 1. 1 by 1 is equal to 1. 1 by 1 is equal to 1. Then the unit is ampere. This is 1 ampere, denoted by capital A. This is the unit of the electric current. Hence you can say the unit of electric current is ampere. How can you define ampere? 1 ampere को आप कैसे define कर सकते हो? अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है किसी वायर में, तो आप उस करंट को 1 एम्पियर कहते हो. You can write as electric current is said to be 1 ampere when 1 coulomb of the charge flows through a conductor or wire for 1 second. Electric current is said to be 1 ampere. 1 ampere when 1 coulomb of charge flows through a conductor or wire for 1 second. This is the definition of unit of electric current, that is ampere. Okay student, this is the unit of the electric current. Now अब डिस्कस करते हैं types of electric currents. Types of electric current, you can say simply current. Type of current. Actually students, basically current को हम 2 parts में divide करते हैं. DC current, that is direct current, और AC current, that is alternating current. Direct current and alternating current. और direct current को भी हम 2 parts में divide कर सकते हैं. उसमें हमारा first part रहेगा steady और smooth direct current. Our first part will be steady or smooth direct current. It is a direct current. Steady or smooth direct current. Simply DC current. इसे आप बोलते हो DC, direct current. जो बैटरी से हमें मिलता है, सेल से हमें मिलता है, वो होता है DC करंट और डायरेक्ट करंट. व्हाट इज दैट? क्या होता है डायरेक्ट करंट? डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होते. वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन का करंट हमें देता है, एक ही पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का करंट हमें देता है. सो यू कैन से एन इलेक्ट्रिक करंट is said to be steady. An electric current is said to be steady. Said to be steady direct current. Said to be steady direct current if its magnitude and direction do not change with time. Do not change
with time. This is called steady or smooth direct current. The current is said to be steady direct current if its magnitude, आपको याद रखना है, magnitude and direction do not change with time. Do not change with time. ओके स्टूडेंट, तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है. तो आप ग्राफ से कैसे शो करोगे? DC current which is smooth or steady. Okay, this is time axis and this is the current axis. Okay, this is current and this is time. This is time. Okay students, now ऐसा करंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, तो ऐसा करंट होगा, इसका ग्राफ होगा a straight line parallel to time axis. Here magnitude of the current is not changing, it is same every time, so it is a direct current. It is a graph of direct current. Okay students, this is the steady direct current or smooth direct current. हर पर्टिकुलर टाइम पे मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट करंट इज आल्सो अ डायरेक्ट करंट बट इट इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट. नाउ द टॉपिक इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट. ऐसा करंट जो वेरिएबल हो, डीसी से भी लिखोगे, नाम से पता चल रहा है, दैट इज वेरिएबल डायरेक्ट करंट. ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसे बोलोगे वेरिएबल डायरेक्ट करंट. बट एक कंसेप्ट आपको याद रखना है, पोलैरिटी नहीं बदलनी चाहिए. पोलैरिटी मीन्स वो कभी प्लस और कभी माइनस नहीं होना चाहिए. पहले हम ग्राफ से ही समझ लेते हैं. दिस इज करंट एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस. दिस इज टाइम एक्सिस, this one, and this is current axis. This is current axis. Okay students, now अगर मैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट की बात करूं तो उसमें मैग्नीट्यूड वेरी करना चाहिए, बदलना चाहिए. दिस वन, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है बट ये ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. मीन्स टू से वो जीरो लाइन से, ओरिजिन से नीचे नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही है. जीरो लाइन से ऊपर है, वो नीचे नहीं आ रहा है, डेट इज वो नेगेटिव में नहीं आ रहा है. तो ऐसे करंट को वेरिएबल बोला जा सकता है. डेट इज द वेरिएबल डायरेक्ट करंट. मैग्नीट्यूड बदल रहा है बट पोलैरिटी नहीं बदल रही है. एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से. दिस इज आल्सो है वेरिंग डायरेक्ट करंट. टाइम के साथ मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है बट ग्राफ कहीं नेगेटिव में नहीं आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है जीरो लाइन से, तो आप इसे बोलोगे वेरिएबल डायरेक्ट करंट. तो सिंपली आपको याद करना है, वेरिएबल डायरेक्ट करंट इज दैट करंट इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड पोलैरिटी रिमेन्स सेम. पोलैरिटी नहीं बदलेगी. सो एन इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी वेरिएबल डायरेक्ट करंट. An electric current is said to be variable direct current. Said to be variable direct current. Variable direct current if its magnitude changes with time. If its magnitude changes with time and polarity remains same स्टूडेंट, उसकी पोलैरिटी नहीं बदल रही है. मीन्स टू से उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा, पोलैरिटी नहीं बदलेगी, वो प्लस माइनस में नहीं जाएगा. सो आपको याद रखना है सिंपली उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है. नाउ अल्टरनेटिंग करंट. व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? इसे आप बोलते हो एसी करंट. एसी करंट हमारे घरों में आ रहा है जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द अल्टरनेटिंग करंट. अल्टरनेटिंग करंट और सिंपली एसी करंट. एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो रहा है
और साथ के साथ उसकी जो पोलैरिटी है मतलब प्लस माइनस वो पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है। पीरियोडिकली रिवर्स मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को कभी वो पॉजिटिव कर लेता है, कभी उसको नेगेटिव कर रहा है। तो ऐसे करंट को आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम ग्राफ में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम इस तरह से बनाएंगे। दिस इज द टाइम एक्सिस, हियर इज द करंट, नाउ दिस इज ओरिजिन लाइन। ऊपर पॉजिटिव होगा करंट, नीचे नेगेटिव होगा। नाउ अगर मैं करंट को इस तरह से बना रहा हूँ, दिस वन, इस तरह से मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में चला गया, अब पॉजिटिव में है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आ गया, अब पॉजिटिव हो गया। तो कभी जो ग्राफ है वो जीरो लाइन से ऊपर है, कभी वो जीरो लाइन से नीचे है। मीन्स टू से वो टाइम बीतने के साथ कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, साथ साथ उसकी पोलैरिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वो रिवर्स हो रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो इस तरह के करंट को आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट। एन अल्टरनेटिंग करंट whose magnitude changes with time and polarity reverses periodically. An electric current is said to be alternating. An electric current is said to be alternating. If its magnitude changes with time. स्टूडेंट्स, चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, चेंजेस विद टाइम एंड polarity means plus minus, that is positive and negative, that is plus or minus, reverse periodically, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वे अपने आप को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या हो रहा है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर रहा है विद टाइम एंड पोलैरिटी रिवर्स कर रही है पीरियोडिकली। वेरिएबल डायरेक्ट करंट में भी ऐसा हुआ था, वहां पर भी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बट इसमें एक चेंज है, पोलैरिटी रिमेन्स सेम। यहाँ पोलैरिटी सेम है, यहाँ पोलैरिटी रिवर्स हो रही है पीरियोडिकली। दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल डायरेक्ट एंड स्टेडी डायरेक्ट। दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a particular direction in a conductor or wire. That is the electric current. दी क्या हुआ है, dt simply. So SK points are very important from CBSE point of view. That is the direction of electric current is opposite to the direction of flow of electrons or along the direction of flow of positive charges. Hence electric current is a scalar quantity. Okay students, this is our today's concept. Thank you very much.